ज्वाइन करते रहेंगे। Maria, kindly start. Assalamu alaikum everyone. Hope you all will be fine and doing well. This is Maria Khan, your host. I welcome you all and especially the new members who joined our amazing platform, Women Fortune Tech. Women Fortune Tech is working since many years for providing digital skills to students and also to professionals by providing them with a platform where they can come forward and excel their talent. We also provide our students and mentors with e-certificate for every course. To achieve the certificate, all the participants are requested to please give your attendance in the chat box when our team member announce it. Any attendance given before announcement will not be considered, so please cooperate with the team members in this regard. Another useful announcement is that all the sessions we conduct are recorded and you can reach it through our YouTube channel where you can find our recorded session if you have missed any. So do subscribe Women Fortune Tech so that you can easily reach out easily reach out the updates from us. Also, you can visit our social media platforms like Instagram and Facebook. So don't miss this opportunity of acquiring digital skills and strengthening your career. Today we are here for another webinar which is about the introduction to SQL, where we will be going to discuss the basics of SQL. For this webinar, we have with us our instructor, Ma'am Malaika Aslam, who is a student at Rifa International University. Thank you so much, Ma'am Malaika Aslam, for joining us. You may please take the start now. Ma'am Malaika Aslam, are you with us? Yeah, I'm here. Assalamu alaikum. Walaikum assalam, आवाज आ ma'am. रही आवाज आ रही है? Yes, ma'am, we can hear you. Okay. I hope all are doing well. My name is Malaika Aslam. जो नहीं जानते मैं दोबारा से अपना इंट्रो दे देती हूँ. आज हम बात करने लगे हैं SQL और जो डेटाबेस जब बेसिक है ना उस पे, ठीक है. मैं खुद एक जो हूँ स्टूडेंट हूँ रिफा की, करंटली आई मीन 4th सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस में कर रही हूँ. तो आज हम SQL पढ़ेंगे, ठीक है. ये जो सेशंस है वो स्पेशली बिगनर्स के लिए डिज़ाइन किया गया, जिनको बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है कि एसक्यूएल क्या है, डेटाबेस क्या है, उनको इसके बाद लग जाएगा कि एसक्यूएल जो है वो आज की लाइफ में क्या चीज़ वो है, क्या वो इसकी वैल्यू है, वो सारा उनको पता लग जाएगा. तो स्टार्ट करें या वेट करने अभी? Ma'am, you can please take the start. The students will join us. ओके. ओके, सो फर्स्ट थिंग जो है, मुझे यहाँ पे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन शो नहीं हो रहा. एक मिनट में करती हूँ. मारिया, आई थिंक मैं होस्ट नहीं हूँ तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है वो जो स्क्रीन शेयर हम करते हैं ना. तो आप अब इसका वो सोल्यूशन मैं आपको पीपीटी शेयर कर दूँ. Yes, ma'am, if you want, you can share the PPT and I will share it. बट आगे एसक्यूएल जो क्यूरीज भी चलानी होगी तो उसमें भी वो हेल्प उसमें होगा. Uh, I don't know what kind of help it will be. Ma'am, you can share the PPT and I will share it. ओके, लेट मी शेयर यू.
Ma'am Malaika Aslam, do you have my contact number? मेरे पास मिस सना का है, आपका तो नहीं है। मान दिया तो क्या किया आपने, वो नाफरमाने को और नाफरमाने को नहीं। Dear Sanya Ma'am, Safi, can you please off your mic? और मिस सानिया का है मेरे पास। दूसरा जोड़ा मैं किसको दूंगी? वो तो दिया हुआ है, वो सीन भी है। मैंने की क्या, मेरी Dear students, stay with us. We will start our session in a few minutes, inshallah. चले जब तक पीपीटी जो है वो शेयर हो रही है आती है, तब तक हम कुछ जो है ना ओरल हम कुछ कर लेते हैं, हम ओरल उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। आवाज आ रही है सबको? Yes, you can start. तो जो हमारे पास एसक्यूएल में जो सबसे हमारे पास मेन जो सबसे पहले चीज आती है वो हमारे पास होता है डेटा। अब यहाँ पे बात आती है कि डेटा, व्हाट इज डेटा। तो आई होप कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको पता होगा कि डेटा क्या है। फिर भी हम फर्दर इसको कर लेते हैं कि जो हमारे पास रॉ इन्फॉर्मेशन होती है ना, जो ऑर्गेनाइज नहीं होती, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। और देन जब उसको हम ऑर्गेनाइज एक वे में कर लेते हैं, देन वो हमारे पास डेटा आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि आप लोग हैं, आप लोगों के अब नेम होंगे, फ़ोन नंबर होंगे, ईमेल एड्रेसेस होंगे। अब अगर ये सारे बिल्कुल रैंडम तरीके से हमें भेज देंगे तो वो हमारे पास सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन होगी, मीन्स के उसको अब जब हम उसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे कि ये नंबर इस स्टूडेंट का है और ये ईमेल इस स्टूडेंट की है, तो उसको हम डेटा कहते हैं, लाइक रॉ इन्फॉर्मेशन वेटिंग टू बी ऑर्गेनाइज। और इसके बाद अगर हम बात करें डेटाबेस की, तो हम देखते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस इज अ सिस्टम वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन ऑर्गेनाइज वे। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो डेटाबेस होती है वो लाइक क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, वो कैसे वर्क करती है, ऐसी हमें क्या जरूरत पड़ी कि डेटाबेस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगी और वो इतनी इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम पहले की बात करें, तो अगर बैंक सिस्टम की बात कर लें कि जब ये ज़्यादा मीन्स का जो एआई और टूल्स वगैरह हमारे पास कुछ भी नहीं था, लाइक जब सारे शॉपकीपर्स वगैरह सारे जो भी थे ना, वो मीन्स के नोटबुक पे या कॉपी पे अपना वो सारा हिसाब किताब जब करते ना वहाँ पे करते थे, तो वहाँ पे एक तो डुप्लीकेसी होती थी, मीन्स के अगर हमारे पास पैसों का कोई मसला है तो हमारे पास एक भी गलती होगी तो मीन्स कि हमारा जो सारा काम है वो ख़त्म, सारा कुछ गया।
लेकिन उसके बाद हमारे पास जब एआई आए आगे, हमारे पास कंप्यूटर का जो है वो ईरा आया, तो उसमें हमारे पास हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया डेटाबेस, जिसके थ्रू हम जो अपना डेटा है उसको सिस्टम्स पे रख सकते हैं, उसमें ऐड, डिलीट, इंसर्ट, मीन्स कि हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइक ये तो एक वे हो गया कि अब जो हमारा डेटा है वो एक तो सिक्योर हो गया, दूसरा हमारा हम नुकसान से बच गए, डुप्लीकेसी जो है वो बच गई। तो डेटाबेस बहुत बहुत मीन्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पे हमारा जो डेटाबेस है वो यूज़ नहीं होता होगा। और डेटाबेस को रन करने के लिए जो हमारे पास है वो इम्पोर्टेंट है एसक्यूएल। अब हम देखते हैं एसक्यूएल क्या होता है। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जो डेटाबेस से कम्युनिकेट करती है। ये इट अलाउज अस टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डेटा, like retrieving data, inserting new data, updating data, deleting data। इससे हमारी लाइफ बहुत मीन्स के बहुत ज़्यादा इजी हो गई है। हमें एक तो वो इतने बड़े बड़े रजिस्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें इतना वो खपने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका हर काम मैनेज इजीली हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर का तो सबको पता होगा कि स्ट्रक्चर कैसे होता है, और क्यूरी का मतलब होता है क्वेश्चंस वगैरह, बहुत सारे जो है ना क्वेश्चंस। हाँ, अब हमारे पास यहाँ पे शो हो गई हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट चीज़ जो हमारे पास देखते हैं कि रॉ इन्फॉर्मेशन वेटिंग टू बी ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टूड। अगर इसमें हम एग्जाम्पल्स देखें तो वही जो मैंने अभी दी है कि निमेल टेस्ट स्कोर्स जो है ये आपका जो है हमारे पास रॉ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अगर हम इसको ऑर्गेनाइज कर लें तो वो हमारे पास डेटा हो जाता है। मिस आनिया आगे करेंगे आप, नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे डेटाबेस आ गया कि हमने जो अभी बताया कि जो डेटा है वो क्या होता है। डेटाबेस मीन्स के क्या होता है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, इजी स्टोरेज होता है, स्मार्ट मैनेजमेंट जो है क्विक रिट्राइवल हो जाती है। मीन्स कि हमारी जो लाइफ है ना वो बिल्कुल ईजी होगी, चिलपिल हो गई है हमारे पास। आगे अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन होना चाहिए था जो मैं एक्सपेक्ट कर ली थी कि आप लोग पूछेंगे, लेकिन आप लोगों ने नहीं पूछा। वो ये था कि डेटा और जो डेटाबेस है वो मीन्स के क्या डिफरेंस है, डेटा क्या है और डेटाबेस क्या है। अगर हम यहाँ पे डेटा जो है वो सिंपल इंफॉर्मेशन होती है, लाइक नेम्स, नंबर्स और ईमेल्स होते हैं, लेकिन जो डेटाबेस होता है ना वो हमारे पास एक पूरा सिस्टम होता है जहाँ ये जो डेटा ना वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर होता है। लाइक स्टूडेंट नेम, ये हमारे पास यहाँ पे डेटा होगा, लेकिन स्टूडेंट का जो पूरा सिस्टम है वो हमारे पास डेटाबेस पूरी जो है ना वो बन गई है। लाइक मैं अगर यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ तो वहाँ पे मेरा नाम मलाइका सिर्फ एज अ डेटा होगा, लेकिन वहाँ पे मेरा सेमेस्टर कौन सा है, मेरा जो सेक्शन है वो कौन सा है, मेरे कोर्सेज कौन से हैं, वो सारा जो भी होगा वो एक डेटाबेस बन जाएगा। मैं लाइक वो एक मेरा पूरा सिस्टम बन जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें एसक्यूएल की, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे अभी हमने देख लिया कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होती है, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनको क्यूरीज होती हैं, उनको हम एक स्ट्रक्चर वे में जो करते हैं हम कम्युनिकेट करते हैं डेटाबेस से। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें इस एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एसक्यूएल को क्यूरी लैंग्वेज कहा जाता है। ये स्पेशली डेटाबेस से कम्युनिकेट करने और डेटा मैनेज करने के लिए यूज होती है। ठीक है, अब हम जो एसक्यूएल है वो हम मीन्स के वो किस शेप में होती है, किस शक्ल में होती है, किस फॉर्म में होती है। तो हमारे पास जो एसक्यूएल है वो टेबल की फॉर्म में होती है। लाइक टेबल तो हमें सबको पता है कि उसमें जो हमारे पास है रोज और कॉलम्स आते हैं। ठीक है, अगर अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछ सकता है। है किसी का? Dear participants, anyone have any question? So you can ask from Ma'am Malaika. चले, आई थिंक सो अभी तक किसी का नहीं है, तो हम फर्दर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आता है कि वाई एसक्यूएल ये क्यों मैटर करती है। जैसे अभी मैंने वो स्टार्टिंग में बताया था कि आज के इरा में हमें बहुत बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इससे हमारा बहुत लॉस होता है, स्पेशली ये यूनिवर्सिटी सिस्टम्स में, बैंकिंग सिस्टम्स, मैनेजमेंट जो सिस्टम्स हमारे पास होते हैं ना वहाँ पे। ठीक है, लाइक हमें डेटा जो है वो स्टोर करना होता है, इन्फॉर्मेशन हमें क्विक इन्फॉर्मेशन चाहिए। लाइक आपके पास अगर कोई एक बंदा आ गया है, उसने बोला कि जी मुझे ये हमारा डेटा है, ये हमारे पास बहुत कम टाइम है, हमें ये चाहिए। अगर हम अब वही हमारे पास जो पुराने दौर में रजिस्टर्स पे हम लिख रहे होते, अब वहाँ से देखते तो वहाँ तो बस घंटों लग जाने थे, बैठे रहना था। इसलिए आज के इरा में तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मीन्स कि आपकी हर जो चीज़ है वो फास्ट हो गई है। SQL is important because it allows us to manage large amount of data easily. ठीक है,
बैंक स्टोर, कस्टमर स्टोर, स्टूडेंट स्टोर्स, ऑनलाइन स्टोर, मैनेज प्रोडक्ट डिटेल्स एंड ऑल। ठीक है, अब हमारे पास एसक्यूएल में एक चीज आती है रिकॉर्ड। यहाँ पे अब रिकॉर्ड का मतलब होता है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ वन एंट्री। जैसे कि मेरा नाम मलाइका है, मेरी सैप आई डी यूनिवर्सिटी में 66062 है, मैं लाहौर से हूँ, मैं कौन सा सेमेस्टर पढ़ रही हूँ, ये मेरा सारा पूरा डेटा है। ठीक है, आगे अब हमारे पास जो पॉपुलर डेटाबेसेस कुछ होते हैं। अब एसक्यूएल तो आपके पास एक होती है लैंग्वेज जिसके थ्रू आप डेटाबेस से बात करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा सारे आ जाते हैं, जैसे कि माई एसक्यूएल है। मैंने तो माई एसक्यूएल वर्कबेंच पे ही काम किया, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं माई एसक्यूएल क्योंकि ओपन सोर्स है इसलिए मुझे यूज़ करना पड़ा। ओपन सोर्स का मीन्स कि ये है कि वो फ्री था, वहाँ पे मुझे वो उसको कोई पे नहीं करना पड़ा वहाँ पे यूज़ करने के लिए। लेकिन अगर हम ओरेकल देखें, एसक्यूएल सर्वर देखें और पोस्टली एसक्यूएल देखें तो यहाँ पे हमें पे करना पड़ता है, जो कि बिगनर लेवल, हम अभी वो उस लेवल पे नहीं है कि हमें वो करना पड़े, तो हमें ओपन सोर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हमने माई एसक्यूएल यूज़ किया। वर्कबेंच ये है, आप सिंपली इसको जाके गूगल से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इसमें और इंटरेस्टेड है, वो करना चाहते हैं, क्यूरीज लेना चाहते हैं, तो सिंपली उन्होंने क्या काम करना है, उन्होंने गूगल पे जाके माई एसक्यूएल वर्कबेंच सिलेक्ट करना है, वहाँ पे उसको सर्च करना है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करेंगे। जो यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, आप लोग ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं यूट्यूब से कि कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि मैंने खुद स्टार्टिंग में बहुत मिस्टेक की थी, मैंने गलत वाला कर लिया था। हमने करना वो वाला होता है जिसमें वो आपसे पासवर्ड मांगते हैं, क्योंकि अगर हम गलत वाला कर लेंगे तो हमें वो पासवर्ड कोई नहीं रूट का याद रहना कि कौन सा था कौन सा नहीं है, तो वहाँ पे हम फंस जाते हैं। इसलिए आपने मीन्स के बड़ा उसको जाके अच्छे से ध्यान से उसको करना होता है। वहाँ पे आपने एक पासवर्ड सेट करना होता है जो आपको लाइफ टाइम के लिए याद रखना होता है, ताकि आप जो है ना उसको फर्दर जो है वो यूज़ कर सकें। और इसी तरह ओरेकल भी है, ज़्यादातर लोग ओरेकल पे करते हैं क्योंकि चलता ही है। अगर हम क्यूरीज की बात करें ना तो माई एसक्यूएल जो ओरेकल की क्यूरीज है उसमें थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अगर आप माई एसक्यूएल भी करते हैं तो वो चल जाता है। ठीक है, और ओपन सोर्स का हमने देख लिया कि वो हमें जो फ्री मीन्स के अवेलेबल हो, पेड ना हो। फर्दर आगे यहाँ पे आते हैं द बिल्डिंग ब्लॉक्स। जो मैंने जैसे कि बताया कि जो डेटा है वो हमारा ऑर्गेनाइज होता है, किस फॉर्म में होता है, वो टेबल्स की फॉर्म में होता है। अब टेबल्स में हमें पता है कि रोज और कॉलम्स होते हैं, लेकिन डेटाबेस में ना रोज है उनको रिकॉर्ड्स कहते हैं, और जो कॉलम्स है हम उनको फील्ड्स कहते हैं। मीन्स कि हर जो रो है ना वो कोई एंट्री जो है, और जो कोई कॉलम है वो एक टाइप की इंफॉर्मेशन है, वो उसको स्टोर कर रहा होता है। लाइक एग्जांपल अगर हम टेबल की लें तो स्टूडेंट एक टेबल है, स्टूडेंट के अंदर उसकी आईडी, उसका नेम, ईमेल, ये जो डिटेल्स होती है ना, ये उसकी सारा मीन्स के ये कॉलम्स होते हैं जहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन होती है। लाइक सिंपली रो हमारे पास रिकॉर्ड होते हैं, कॉलम फील्ड होती है। रिकॉर्ड कैसे, स्टूडेंट है वो उसका रिकॉर्ड होगा, लेकिन कॉलम्स में, फील्ड्स में उसका डेटा पूरा जो है सारा वो स्टोर होगा। देन यहाँ पे हमारे पास कुछ मेंस जो एसक्यूएल कमांड्स है ना, जो हमारे पास सिर्फ ये 4 कमांड्स हैं जो यूज होती हैं। ठीक है, अब एक होती है डेटा की और एक होती है रिकॉर्ड्स की जो कमांड्स होती हैं। अब ये जो कमांड्स है ये हमारे पास डेटा की हैं, जो एक सिलेक्ट है। लाइक अगर हमने कुछ भी हमारे डेटाबेस में से देखना है ना तो सिलेक्ट के थ्रू हम, सिलेक्ट एक कीवर्ड है। अगर एसक्यूएल अब यहाँ पे स्क्रीन शेयर किया है, वरना मैं आपको पूरा वो परफॉर्म करके दिखाती। ये जो सिलेक्ट है ना, सिलेक्ट से हम किसी भी डेटाबेस में, मीन्स के हमारे पास यूनिवर्सिटी का डेटाबेस आ जाता है, फार्मेसी का डेटाबेस आ जाता है, बैंक का डेटाबेस आ जाता है, वहाँ से हम सिलेक्ट के थ्रू हम कोई भी जाके डेटा उठा सकते हैं। इंसर्ट के थ्रू हम कोई भी नया रिकॉर्ड्स जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। अपडेट के थ्रू जो है हम उसका कुछ भी अपडेट कर सकते हैं, और डिलीट के थ्रू ऑफ कोर्स डिलीट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं अब यहाँ पे शो नहीं कर सकती, लेकिन आपके पास ये 4 क्वेरीज है मेन। अगर किसी का डेटाबेस में जो इंटरेस्ट है उसके लिए मीन्स कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो ये चीज़ गौर से सुने कि ये जो 4 है ना, ये हम डेटा पे परफॉर्म करते हैं, डेटा पे। ठीक है, एक हमारे पास कमांड होती है ड्रॉप और मॉडिफाई की। फॉर एग्जांपल डिलीट अब यहाँ पे है, तो डिलीट मैं एक कॉलम के लिए यूज़ करूँगी, कॉलम के लिए। ठीक है, लेकिन जो ड्रॉप है
वो मैं टेबल के लिए यूज़ करूँगी। इन दोनों में ना बहुत डिफरेंस है, कॉलम और टेबल। अगर मैं कॉलम की बात करूँ तो कॉलम में आएगा मेरा नेम, अगर मैं टेबल की बात करूँ उसमें आएगा पूरा स्टूडेंट। जितने स्टूडेंट्स हैं सबके जो है ना वो डिलीट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं करूँ डिलीट, ओनली डिलीट डेटा, तो सिर्फ मेरा डेटा डिलीट होगा, उसमें वो जो मेरा टेबल मैंने पूरा बनाया होगा वो डिलीट नहीं होगा। तो अब ये नहीं है कि ये सिर्फ जो 4 हैं ये चीज़ें आपको आ गई तो बस खत्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो मेन हमारे पास जो काम होता है वो होता है कि टेबल जो हमने क्रिएट करने होते हैं। अगर आप में से फर्दर अगर कोई आगे प्रोग्रामिंग में जाएगा ना तो उसको वहाँ पे कंस्ट्रेंट्स के बारे में पता होगा। कंस्ट्रेंट्स जो क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट एक टाइप होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ABC, ठीक है। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन अल्फ़ाबेट्स को हमने कहीं पे यूज़ करना है ना तो उसके लिए हम कैरेक्टर का यूज़ करेंगे। लाइक एक कैरेक्टर हम A जो है वो हमारे पास एक कैरेक्टर हो गया। इंटीजर यूज़ करेंगे इंटीजर्स के लिए, लाइक जो हमारे पास होते हैं नंबर्स होते हैं उनके लिए। स्ट्रिंग यूज़ करेंगे हमारे पास कोई, जैसे माय नेम इज़ मलाइका, ये पूरी एक स्ट्रिंग है, उसके लिए स्ट्रिंग टाइप होती है लाइक स्ट्रिंग, कैरेक्टर, इंटीजर। ये आपके यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए हम कौन सा कंस्ट्रेंट्स जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास मीन्स के बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे नहीं पता कि आप में से कौन कौन सुन रहा है, किसको इसके बारे में पहले से पता है। लाइक मैं आपको एक अपनी तरफ से बहुत ईजी करके बिगिनर लेवल पे समझा रही हूँ। आगे मैं आपको आगे, हाँ, जैसे मैंने अभी सिलेक्ट का बताया, स्टूडेंट में बार बार स्टूडेंट का मीन्स के बता रही हूँ क्योंकि इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा समझने में। स्टूडेंट, अब यहाँ पे मैं एक टेबल बना चुकी हूँ। मैं यहाँ पे टेबल का वो नहीं क्यूरी यहाँ पे ऐड की हुई क्योंकि वो ज़्यादा मैस हो जाता, आप लोगों को समझ नहीं आना था। लाइक टेबल आप समझ लेगा, मैंने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट यूज़ करूँगी। अगर करती हैं तो वो केस सेंसिटिव नहीं है, मीन्स कि आप अपर केस लोअर केस किसी भी केस में उसको सिलेक्ट को लिख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे आप सिर्फ कैपिटल ही को प्रेफर करते हैं, वो उसको ही एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो आपको एरर देगा। अब यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट का मतलब होता है कि ये चीज़ जो है मुझे चाहिए। अब आगे जो स्टेरिक आया, स्टेरिक का मतलब होता है कि ऑल डेटा, स्टूडेंट में जो भी डेटा है ना उसमें जितने भी कॉलम्स हैं, ID, नेम, नंबर, जितना भी है वो सब फ्रॉम कहाँ से, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट वो मीन्स के अगर आप देखें ना, एक स्टूडेंट है उसमें उसका ID आ गया, नेम आ गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास स्टूडेंट है वो तो एक टेबल है, लेकिन उसके अंदर जो डेटा है वो कॉलम्स है। स्टैटिक उन सारे कॉलम्स को उठाएगा और स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे बता दे कि ये टेबल है। तो अगर आप ये क्यूरी सिंपली लिख के एग्जीक्यूट करते हैं तो स्टूडेंट के अंदर आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो थाउजेंड्स हैं चाहे वो हंड्रेड्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका जितना भी डेटा पड़ा है वो आपको सारा डेटा लाके आपको शो कर देगा टेबल्स की फॉर्म में। क्योंकि सारी सी बात है ये स्टोरी टेबल्स की फॉर्म में करता है, ठीक है। अब फ्रॉम हमें बताता है कि किस टेबल से हमने उसको उठाना है, और स्टूडेंट यहाँ पे है टेबल का नाम, और स्टैरिक है ऑल डेटा। अगर सिर्फ हमें एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए लाइक नेम चाहिए तो स्टैरिक की जगह आप सिंपली वहाँ पे नेम लिख देंगे। लेकिन आपने ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि आपने जो चीज़ मीन्स के जो जिस नाम से आपने डेटाबेस बनाई हुई है आपने वही नाम यूज़ करनी है, अदरवाइज वो आपको एरर देगा कि ये तो है ही नहीं इधर, मैं आपको कहाँ से ला के दूँ, ठीक है। उसके बाद आगे मास्टरिंग SQL। अब इसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं, फाउंडेशन, वर्सेटाइल और पावरफुल। लाइक SQL एक फंडामेंटल स्किल है। अगर आप डेटा फील्ड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या डेटाबेस मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स जो है अब वो शो तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको ऐसे बोल देती हूँ। अगर हमने डेटाबेस कोई क्रिएट करना है ना, अब जब हम स्टूडेंट्स थे ना, मीन्स के जब हमने डेटाबेस पढ़ी, अभी तो मैं 4th 3rd में ही पढ़ी थी, तो कुछ बच्चों ने तो डर से उसको कर दिया, विड्रॉ ही कर दिया, कुछ ने ड्रॉप कर दिया। हालांकि कोई इतना मुश्किल जो सब्जेक्ट है नहीं है। जो मीन्स के बच्चे कोडिंग करेंगे, C++ ये पढ़ेंगे, जावा पढ़ेंगे, उनकी निस्बत तो ये बहुत उनके लिए जैसे इजी पीजी है, ठीक है। और उनको इच्ची बिच्ची आती होगी जो इसको ध्यान से पढ़ेगा। मुझे जो सिर्फ क्लास में लेक्चर जो मिले हैं मैंने सिर्फ वही देखे हैं, वही पढ़े हैं। मैंने इसको घर में जाके कोई कुछ नहीं पढ़ा। फिर भी क्लास में
मैं हमेशा टॉप रही इसमें। सब मुझे से पूछते थे कि ऐसा कैसे। अब मुझे खुद नहीं पता कि कैसे ये दिमाग में घुसी है, लेकिन घुस गई, ठीक है। तो क्योंकि ये एक तो होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, ये आपका इतना वो मुश्किल नहीं है, आप इसको इजीली समझ सकते हैं। अगर आपकी यहाँ पे कोई मिस्टेक हो रही है तो आपका जो एरर है वो आपको प्रॉपर हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको जो मेन चीज़ है ना वो हमें बस 2 है, टेबल आप क्रिएट करें, ठीक है, और इसमें डेटा इंसर्ट करें, बस ये सिर्फ इतना है। लेकिन जो अब हम लैंग्वेज में इसमें जाते हैं ना, C++, जावा, वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा मेरा सर घूम जाता है कसम से। तो SQL तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर कोई आप में से अगर है ऐसी मीन्स के जो जॉब करना चाहें फर्दर इसको लेके चलना चाहिए, तो वो सिर्फ ये डेटाबेस अच्छे से कर लेना, लाइक आप 6 अच्छे से कर ले तो ये आपको इजीली मिल जाएगी, क्योंकि डेटाबेस यूज होती ही हर जगह पे है। अब हम फर्दर इसके बारे में थोड़ी सी क्यूरीज जो है वो उसका कर लेते हैं। अब जो MySQL वर्कबेंच आप लोग जब डाउनलोड करोगे उसके बाद आपके पास स्टार्टिंग में कुछ ऑप्शंस आते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग फोल्डर्स बना सकते हैं। आपको वहाँ पे एक गिवन होता है, आप उसमें भी क्यूरीज लिख सकते हैं। आपने जाके वहाँ पे सिंपली क्यूरीज जाके लिखते हैं। तो सबसे पहले ये नहीं होता कि आप जाते ही अब वहाँ पे करेंगे कि ये फलाने स्टूडेंट से मुझे डेटा दे दो। वहाँ पे आपने डेटाबेस क्रिएट भी करना है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ टेबल क्रिएट करना है, उसमें आपने कॉलम्स क्रिएट करने हैं, ये भी लाजमी नहीं है। आपने डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस हम यहाँ पे अब क्रिएट कैसे करते हैं, हम क्रिएट का वर्ड यूज करते हैं, क्रिएट डेटाबेस। आगे जो भी आपने डेटाबेस का नाम रखना है वो और लगा दें, बस आपका डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो गया। मीन्स कि इतनी इजी पीजी है। आपने सिर्फ क्रिएट डेटाबेस, अब जैसे हम सिंपल बोल रहे हैं कि क्रिएट डेटाबेस, हमने कब उसको क्रिएट करना है, आप वैसे ही लिखेंगे वो क्रिएट हो जाएगा। ये कोई इतना वो मुश्किल नहीं है। अब इसके आगे जो फर्दर हम चलते हैं टेबल क्रिएट करने का, तो आप जब टेबल क्रिएट करते हैं तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, उसके बाद आप स्मॉल ब्रैकेट्स लगाते हैं, उन ब्रैकेट्स के अंदर आप फिर फर्दर कॉलम्स जो हैं वो लिखते हैं, ठीक है। कॉलम्स कैसे आप पाएंगे, अगर आईडी है जैसे आ चुकी है, अब आईडी में हम इंटीजर्स लेते हैं, लाइक नंबर्स लेते हैं वहाँ पे, तो ये आईडी का जो कंस्ट्रेंट होगा वो होगा इंट। इसको इंट की फॉर्म में हम लेंगे, ठीक है। उसके बाद साथ में हम लिखेंगे प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब अब फर्दर प्राइमरी का मतलब होता है कि वो चीज़ यूनिक भी हो और नॉट नल भी हो। अब SQL लैंग्वेज में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप नोट ये दो कीवर्ड उसकी मींस के जो भी कॉलम बना रहे हैं जिसको आपने यूनिक रखना है उसके साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने उसको मींस के अब हम क्यों इतना वो उसको मैस करें, क्यों हम 2 वर्ड से वहाँ पे इतने लिख रहे हैं, नोट नल भी हम साथ में लिख रहे हैं, यूनिक भी लिख रहे हैं। सिंपली हम प्राइमरी की साथ में लिख सकते हैं। प्राइमरी की का मतलब भी यही होता है कि वो नल भी नहीं होगा, मीन्स के आपने उसमें कुछ ना कुछ एंटर भी करना है और वो यूनिक भी होगा, मीन्स के कुछ ऐसा नहीं होगा जो रिपीट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट का आईडी है वो है 1 और एक और स्टूडेंट आ जाता है उसको वहाँ पे वो आपका उसको मीन्स के वो यूनिकनेस तो उसकी खत्म हो गई, वो तो यूनिक रहा ही नहीं, तो वो आप उसका वो मीन्स के वो उसको ऑटोमेटिकली यूनिक हम उसको बना देंगे। वो आपका वहाँ पे एरर देगा कि ये तो यूनिक है ही नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा। उसके बाद हमारे पास ये तो हमारे पास होगा आईडी। आप लोगों ने याद रखना है आईडी के साथ हमेशा इंटीजर। आईडी हर किसी की अपनी होती है। यूनिक मीन्स के डेटाबेस में कहीं भी आईडी का जिक्र आया ना तो वो आप लोगों ने आंखें बंद करके उसके साथ प्राइमरी की लगा देना, क्योंकि किसी के भी आईडी जो है वो मैच नहीं करेगी। जैसे हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है उसमें CINC सबका यूनिक होता है, किसी का भी सेम नहीं होता, तो वो तो आंखें बंद करके आपने प्राइमरी की लगा देनी होती है, ठीक है। और एक टेबल में आपकी जो मीन्स के कॉमनली एक चीज ही प्राइमरी की हो सकती है, ज्यादा सारी मल्टीपल नहीं हो सकती। उसके बाद फर्दर अगर हम नेम की बात करेंगे उसके साथ हम जो कंस्ट्रेंट जो डेटा टाइप लगाते हैं वो हमारे पास होता है वेरकेर लगाते हैं। अब अदर लैंग्वेजेस में उसको हम स्ट्रिंग कहेंगे, लेकिन यहाँ पर कहते हैं वेरकर। आप लोगों ने अपर केस में लिख के स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी नंबर, जितने भी आपके नेम्स में अल्फाबेट्स आ रहे हैं ना, आप वहाँ पे जितना भी उसको बताएंगे वो उतने तक का बाउंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रही हूँ वेरकर ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर मैं कुछ भी लिख रही हूँ लाइक 50 100 समथिंग लिख रही हूँ ना, तो वो बाउंड हो जाएगा कि उसने 50 अल्फाबेट्स ही रहने हैं, उससे वो ज्यादा नहीं हो सकता।
देन हमारे पास एज, वो भी नंबर्स में होती है, तो उसकी जो टाइप है वो भी इंट में आएगी, ठीक है। तो मिस सानिया, ऐसा हो सकता है कि मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूं आपके साथ और वो आप डिस्प्ले कर दें? जी जी कर दें आप। मैम आपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया हुआ है? मैम मलाइका, जी जी, मैंने लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया आप होगा। ये कोशिश करें, आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। ये आपका जो नीचे लाइन आपको शो हो रही है ना, वहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपके पास आता है। अभी मेरे पास वो शो नहीं हो रहा, यही तो मसला है ना। चलिए ठीक है, आप मुझे शेयर कर दें, मैं करती हूँ। जी जी, मैं वही कर रही हूँ। तो ये जब आप एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है, ठीक है। ये पूरा ऐसे होता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सारे जो फोल्डर्स हैं वो मैंने ऑलरेडी नीचे देखे, रूट, न्यू कनेक्शन, प्रोजेक्ट वर्क, डेटाबेस सिस्टम, ये सारा कुछ मैंने बना के रखा हुआ है, क्योंकि ये मैंने पूरे सिस्टम से बनाए हुए हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऑफकोर्स आपको रिक्वायर्ड होता है, अपने प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, पूरा वर्क उस पर करना होता है। तो आप अगर चाह रहे हैं कि आपके पास अपना एक अलग फोल्डर हो, लाइक अगर आपके पास एक स्कूल का सिस्टम आ जाता है वो आपने अलग रखना हो, एक बैंक का सिस्टम आ जाता है वो आपने अलग रखना हो, तो माई एसक्यूएल कनेक्शंस के सामने दो ऑप्शन है हमारे पास, ये छोटे छोटे, एक प्लस का और एक वो ड्राइवर का जो होता है वो हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है। अगर एक प्लस पे आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से अपना न्यू जो फोल्डर है वो बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्दर इनमें से मैं अगर एक पे क्लिक करूं तो मेरा जो वर्क है ना वो शो हो जाएगा। मिस सानिया, वो शो कीजिएगा अगली पिक्चर। मिस सानिया, जी जी, एक सेकंड दीजिएगा। मैम हो गया। मैम ये शेयर हो गया, आप देख सकें। ओके। तो ये हमारा वो एक था प्रोजेक्ट जो हमने एक बनाया था। यहाँ पे
अब मैं इसको आपको थोड़ा सा इसका इंटरफेस जो अगर यूज़ फर्दर करना चाह रहे हैं, क्यूरीज लिखना चाह रहे हैं, मैं उसको थोड़ा सा बता देती हूँ। अब पीछे हमने देखा था कि आपके पास फोल्डर थे, एक तो आपके पास वो बिल्ट-इन होता है कि आपके पास बन के आएगा, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे एक छोटा सा प्लस का ऑप्शन था, वहाँ से अपने आप भी बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी लेफ्ट साइड फाइल्स शो हो रही हैं, BMS होटल रिजर्वेशन सिस्टम, लैब 6, लैब 8, लैब टास्क, ये मेरे पास डेटाबेस हैं जो मेरे पास क्रिएट किए हुए हैं। तो अब सिंपली आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे आके क्यूरीज लिखनी है। जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर हमने क्रिएट डेटाबेस करना है तो सीधा आप उसको लिख दें। तो फर्स्ट पे अगर देखें तो मैंने जो फर्स्ट हमारे पास लाइन है वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट। अब मैंने बताया था कि ये केस सेंसिटिव होता है, यहाँ में हमने इसको सारा कुछ अपर केस में लिखना होता है। क्रिएट डेटाबेस कि इस डेटाबेस को क्रिएट करो, इफ नॉट एग्जिस्ट का मतलब होता है कि ये जो भी डेटाबेस में आगे उसका नाम लिखने लगी हूँ, अगर ये तो क्रिएट नहीं है, मीन्स के मेरे सिस्टम में मेरे पास नहीं है, तो ये बना दो। अगर तो वो होगा तो वो आपको नीचे एरर शो कर देगा कि ये ऑलरेडी आपके पास है, ये हम नहीं बना सकते। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखने के बाद आपने इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करके, हमारे पास 2 थंडर के निशान जो हैं वो हमारे पास शो हो रहेंगे। मिस सानिया आप जरा उन पे लेके जाएंगी यारो। मैम के ऊपर, कहाँ पे क्रिएट के लिखना? ऊपर 2 हमारे पास थंडर के जो निशान है, बिजली के निशान शो हो रहे हैं। क्रिएट के ऊपर यहाँ पर? ये नहीं, नीचे ये थंडर, इसके साथ वाले ऊपर साथ ही। हाँ, ये इसका जो मतलब होता है, ये जो हमारे पास 2 है ना, इसमें जो फर्स्ट वाला है उसका मतलब होता है कि आपका यहाँ पे इस स्क्रीन पे जितनी भी क्यूरीज लिखी हुई उनको सबको एक साथ रन कर दो, ठीक है। लेकिन जो उसके अगले वाला थंडर है उसका मीन्स होता है कि जो आपने सिर्फ सिलेक्ट किया ना, आप सिर्फ उसी ही को कर दो। मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन सिलेक्ट कर लेती हूँ, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट वाली मैंने सिलेक्ट कर ली और मैंने वो थंडर जिसके साथ आई लिखा हुआ है उस पर क्लिक करती हूँ, तो इसका मतलब है वो सिर्फ उसी लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, पूरे को नहीं करेगा। और एसक्यूएल का आपका ये रूल होता है कि आप जो पूरा है वो एक साथ एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपके एरर्स होते हैं, आपने वहाँ पे चेंजेस करने होते हैं, उसको फर्दर बनाना होता है, तो उसके लिए आपका इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास अब यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। उसके बाद लाइन पे आते हैं तो वहाँ पे मैंने यूज का वर्ड यूज किया हुआ है। यूज तो अब जाहिर सी बात है इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। यूज का मतलब ये होता है कि आप उसको बस यूज कर लो कि अब इस रेसिपी मैनेजमेंट को, इस डेटाबेस को हमने यूज करना है। अगर आप ये वर्ड यूज नहीं करेंगे तो वो आपको एरर देगा, वो कहेगा कि आपने मुझे बताया ही नहीं कि मैंने करना किस पे काम है। यहाँ पे तो इतने ज्यादा सारे डेटाबेस हैं, जैसे BMS है, लैब 6 है, 8 है, मुझे कैसे पता चलेगा मैं कौन सा यूज कर रही हूँ। तो इसके लिए आपने यूज का कीवर्ड जो है वो यूज करना है। फर्दर नीचे अब हम आ जाते हैं तो यहाँ पे हमने बनाया हुआ है टेबल, जैसे कि नाम के साथ लिखा हुआ है क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने टेबल क्रिएट किया जिसको मैंने नाम दिया यूजर्स का, आगे जो ब्रैकेट्स के अंदर वाले जितने भी चीजें हैं वो हमारे पास होती हैं कॉलम, ठीक है। अभी मैंने बताया जो आईडी होती है वो इंटीजर लेवल की होती है और आईडी हमेशा प्राइमरी की ही होती है। अब यहाँ पे मैंने ऑटो इंक्रीमेंट का नाम यूज किया हुआ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने किसी स्टूडेंट की आईडी लिखी है और फर्दर मैं नेक्स्ट स्टूडेंट पे गई हूँ तो वो जो है मीन्स के ऑटो खुद ब खुद उसमें एक नंबर ऐड हो रहे हैं। इससे तो हमारी एक तो डुप्लीकेसी नहीं होगी और ऊपर से हमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ेगा। और आईडी सब में होती ही प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की उसके साथ यूज किया। इससे बेहतर मीन्स के यूनिक और नोट नल से बेहतर प्राइमरी किया। नीचे अगर हम देखें तो ईमेल, अब ईमेल भी सबका जो है वो सेम नहीं होता, वो भी यूनिक होता है, लेकिन प्राइमरी की एक टेबल में एक ही हो सकती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूनिक और नोट नल का वर्ड यूज कर लेंगे। अब ईमेल के आगे हमने वेर का 255 ये हमने क्यों लिखा है, इसका अब क्या मतलब हो गया यहाँ पे? अब हमें सबको पता है कि ईमेल जो होते हैं वहां पे हम अल्फाबेट्स मीन्स के मलाइका वटू अब एक नाम हो गया, तो ये वेरकर हो गया, मीन्स के ये हम कैरेक्टर्स मिलके बना रहे हैं। तो इसको हमने बताया कि एक तो ये वेरकर की टाइप हो और 255 लिखा कि ये इतने वर्ड्स इसमें आप स्टोर कर सकते हैं, ये आपका हो सकता है। आगे यूनिक का मतलब ये है कि ये यूनिक हो, मीन्स कि कोई और इसको यूज ना कर सके, डेटाबेस में कोई और इस नाम की ईमेल आए ही ना। और नॉट नल का ये मतलब है आप उसको खाली भी नहीं छोड़ सकते, आपने उसको फिल करना ही
करना है। देन फर्स्ट नेम पे, अब यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा है क्योंकि हम जब भी कोई वेबसाइट पे जाते हैं, कोई कुछ पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपसे क्या फर्स्ट नेम लास्ट नेम जरूर पूछते हैं, ठीक है। फर्स्ट नेम यहाँ पे ये हो गया, वेरकर वही अगेन, क्योंकि हमारे जो नेम्स होते हैं वो कैरेक्टर से मिलके बनते हैं, ठीक है। और वेरकर के अंदर आप जितना मर्जी नंबर्स आप लिख दें, आप उसको मीन्स की बाउंड जितना मर्जी करते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। नोट नल मीन्स का आपका जो नाम है वो भी नल नहीं होना चाहिए। पासवर्ड भी सेम चीज वही आ गई, हमने यहाँ पे जो पासवर्ड की टाइप रखी है वो वेरकर रख दी है, और उसको भी कहा है कि वो नोट नल ना हो। अब ये हमारे पास आईडी, ईमेल, फर्स्ट नेम, पासवर्ड, ये हमारे पास हो गए कॉलम्स, ठीक है। ये हमारी होगी फील्ड्स। अब जो वहां पे ऊपर यूजर था उसका मतलब था ये हमारे पास हमारा टेबल है, जैसे कि नाम शो हो रहा है क्रिएट टेबल, तो ऑफ कोर्स वो हमारा टेबल होगा, ठीक है। नीचे हमने एक और टेबल बनाया हुआ है कैटेगरीज का, वहां पे भी हमने यही सेम चीज की हुई है, ठीक है। बस ये इतना सा काम है, इसमें कोई लंबा चौड़ा नहीं है, कोई वो इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, लाइक जो लोग इतना इसको मुश्किल समझते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास इंसर्ट, अपडेट और डिलीट की क्यूरीज होती हैं। नीचे अब हमने किसी भी चीज में डेटा इंसर्ट करना है, तो अब उसका वो क्या होगा, ठीक है। सिंपली इंसर्ट आप वही यूज करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज आपने यहाँ पे यूज करनी होती है, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू, जिसमें भी आपने इंसर्ट करना हो, लाइक हमारे पास हमने ऊपर कॉलम्स बनाए थे ना, आईडी, ईमेल, फर्स्ट नेम, ये सारी आईडीज हमने बनाई थी। तो ये हमारे पास जो होता है, ये हमारे, मैं मीन्स के बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ये हमारे पास कॉलम होते हैं। अब जब इंसर्ट करने जाना होता है तो आपने उसको बताना होता है कि आप इंसर्ट टेबल में कर रहे हैं और किस कॉलम में कर रहे हैं। अब नीचे मैंने कैटेगरीज का नाम का एक टेबल भी बनाया हुआ है। अब मैं बोला है कि मैंने कैटेगरीज में नेम में जाके कोई चीज ऐड करनी है, तो वो कैसे करूंगी? सिंपली इंसर्ट करूंगी इनटू कैटेगरीज, लाइक कैटेगरीज में जाके ब्रैकेट्स के अंदर नेम के, नेम में जो है वो मैंने करना है। अब वैल्यूज जब आप वर्ड यूज कर लेते हैं वैल्यूज के बाद, इसका मतलब ये होता है कि अब आपने अपना जो डेटा जो भी उसमें इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो देना है। जैसे आप नीचे डिजर्ट, स्नैक्स, वेज, नॉन वेज, मैंने ये सारा लिखा हुआ है। आप एक ही टाइम में मल्टीपल चीजें जो हैं वो इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स ले सकते हैं, मल्टीपल डेटा ले सकते हैं। लाइक बहुत ही इजी बिजी सीन है, यहाँ पे इतना वो कोई मीन्स के कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला, कोई क्वेश्चन वगैरह कोई है तो वो पूछ सकता है। आई डोंट थिंक सो कि किसी का कोई क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे अगर किसी को समझ नहीं भी आ रही होती तो भी किसी ने भी नहीं पूछना, क्लास में जो सेम सीन होता है वो ऐसे ही मीन्स की होता है। और वेबिनार भी क्योंकि ये हो रहा है तो ऑफ कोर्स इतना वो किसी को नहीं मीन्स के। हाँ उमाइमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने एक क्वेश्चन पूछना था कि हम लोग इसमें भी एसक्यूएल यूज करते हुए हम टेबल बनाएं और डेटा स्टोर करें, तो स्कूल्स में तो हम यही काम एक्सेल पे भी कर लेते थे ना, तो एसक्यूएल और उसको चेंज करना, एक्सेल से इस पे स्विच करना, इसमें क्या फायदा होगा इससे? देखिए जो हम स्कूल में काम करते थे ना एक्सेल वगैरह, मीन्स कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब देखिए जैसे हम अब किसी बैंक में जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारा मीन्स के लाखों बिलियन का ये सारा सिस्टम होता है। यहाँ पे एक चीज आ जाती है ऑप्टिमाइजेशन। अब ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है कि किसी भी चीज को बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट मीन्स कि जल्दी से देना। अगर आप एक्सेल में जा रहे हो तो वहाँ पे आप, अगर आपने नोटिस किया होगा तो वहाँ पे अगर हमने किसी का कोई क्विक नेम मीन्स के चाहिए, उसकी वो पूरा डिटेल्स चाहिए, तो वो हमें नहीं वो इतनी जल्दी मिलता जितनी जल्दी हमें वहाँ पे चाहिए होता है। तो डेटाबेस का पर्पज ही ये होता है कि वो ऑप्टिमाइज करके चीजें देता है और बहुत ही एफिशिएंट वे में देता है। और जिस बंदे की ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रॉन्ग है ना, उसमें कोई शक नहीं कि उसको ऐसी कोई जॉब मिले ही ना। अब हमारे पास एसक्यूएल में दो चीजें आती हैं, और सब क्यूरी, जॉइंस और सब क्यूरी में सबसे जो हमारे पास, अब यहाँ पे देखो, अब एक चीज हम एक क्वेश्चन मीन्स के जैसे अब हमारे पास हो रहे हैं, अब वो हमें बेशक क्वेश्चन आता हो या ना आता हो, आपको एक टाइम मिलेगा, आपने उस टाइम में वो चीज करके देनी ही देनी है, आपके पास और टाइम नहीं होता। सेम चीज हमारे पास यही है कि एक्सेल और डेटाबेस में
फर्क हमारे पास ये है कि डेटाबेस एक बहुत बड़ी मीन्स कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इसमें स्टोर होता है। एक्सेल में आपके पास वो इतना नहीं हो सकता, उसमें मेस हो जाता है, आप उसको सर्च नहीं कर सकते, ऐसा मतलब उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो मेन डिफरेंस ही हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन और जो उसकी कैपेसिटी है उसका होता है। हुआ क्लियर? जी जी, थैंक यू। क्योंकि स्कूल में तो हम लोग ऐसी बस कंप्यूटर की क्लास में करते थे, तो इतना डेटा होता ही नहीं था। मतलब कि हम लोग एसक्यूएल तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा है, ऐसा ही? डेटा होता है लाइक उस डेटा को जो है हम मीन्स के प्राइवेसी जो होता है बैंक सिस्टम में तो ऑफ कोर्स होता है, यूनिवर्सिटी सिस्टम में होता है, हॉस्पिटल सिस्टम में होता है, जो प्राइवेसी है वो भी आपकी मैटर करती है। एक्सेल शीट अगर आप खोल लें तो सबका डेटा आपके सामने पड़ा होगा, एक कॉमन बंदा भी आके उसको कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर हम बात यहाँ पे होती ना एक्सेल शीट की, तो वहाँ पे तो प्राइवेसी हमारा कुछ भी ना रह जाता होता, स्कैम्स और मीन्स के फिर तो हमारा फायदा ही नहीं था कि हमने भी डेटाबेस को बनाना है। अब जैसे कि हमारे पास हम CNA से आइडेंटिटी कार्ड बनवाते हैं, तो आपको पता है कि नादरा में कितने ज़्यादा सारे लोग होते हैं। अब एक बंदा वहाँ पे जा रहा है बनाने जा रहा है, तो वो फर्दर आपकी डिटेल्स उसको मीन्स के वो चीज़ लाती मैं वो आपको करेगा। जो पहली चीज़ वो प्रेफर करेगा वो ये होगा आपका बैकअप, वहाँ पे वो आपका बैकअप पूरा चेक करेगा। वो इतना मीन्स के जो एक्सेल शीट है वो इतना एफिशिएंट नहीं होता। अब वो डेटाबेस के थ्रू, ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, वो मीन्स के विद इन सेकेंड्स आपका जो डेटा है वो एक्सेस कर लेगा, आपकी वो जो फुल डिटेल्स हैं वो उसको कर लेगा। इवन के जो हमारा CNAC जो हमारा डेटा होता है वो डेटाबेसिस में स्टोर होता है। लाइक अगर हम जैसे कि बैंक अकाउंट कोई बना रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, यहाँ पे आजकल जो भी बहुत ज़्यादा सारी जो स्कीम्स आ गई है ना गवर्नमेंट की तरफ से, मीन्स के जिन लोगों को मिल रहे होते हैं पैसे वगैरह या कुछ भी, तो ये सारी चीज़ें होती ही डेटाबेस के थ्रू हैं। पहले वो पता करते हैं कि ये बंदा जो है ये लायक है भी या नहीं, मीन्स के वो एक चीज़ होती है मीन्स के आज के लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी है। एक चीज़ आपकी है, आप उसके हकदार हैं, लेकिन वो आपको उसका नहीं हक जो है ना वो आपको नहीं लेने देते। वो कहेंगे कि हमसे ज़्यादा ज़रूरत तो है ही नहीं। तो ये चीज़ भी है कि हमें डेटा भी चाहिए होता है ताकि जो चीज़ जिसकी है वो उसको ही मिले। और जैसे आप प्राइवेसी का बता रही हैं कि इसमें प्राइवेसी का भी ज़्यादा होता है एसक्यूएल में, तो उसमें आप आगे बताएंगी कि प्राइवेसी का किस तरह से है, या फिर अगर नहीं बताएंगी तो मैं बाद में चेक कर लूँगी, लेकिन बताएंगी क्या आप आगे? हाँ हाँ ज़रूर। मीन्स के प्राइवेसी ऑफ डेटाबेस में मीन्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है लाइक पर्सनल डिटेल। अब मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन जब मैंने सेशन देना था तो उससे पहले जब इंफॉर्मेशन आपकी कलेक्ट हो जाती है तो वो उसमें मीन्स के होता तो यही है कि आपका वो जो नेम वगैरह है वो सारा स्टोर करते हैं ताकि फर्दर ये उनको हेल्पफुल रहे कि इस बंदे ने पहले भी वो दे चुका है या नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे आपका वो मीन्स कि आपको पर्सनल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स जैसे कि होती है वो मांग रहे, तो ये वो बड़ी शॉकिंग सी चीज़ नहीं होती। लाइक मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पे। अब ये कोई ना इस फाउंडेशन ने ऐसा कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखें बैंक जो है वो हमारी बहुत ही सेंसिटिव डिटेल है। अगर आपकी जो बैंक डिटेल्स है वो गई तो आपको पता है कि आपका जो है वो सारा पैसा वगैरह हो गया, आपका जो एक्सेस है वो गया, जो आपकी ऑथेंटिकेशन है वो गई, डेटा प्रोटेक्शन जो आपका है वो गया, यूजर जो परमिशन है आपकी वो सारी गई। मीन्स कि एक तरह से आपका पूरा डेटा ही गया। हुआ क्या? तो जो नहीं, मैं पूछ रही थी कि जो प्राइवेसी है वो इस तरह से है कि कोई पासवर्ड लगा हुआ है कि किसी और टाइप की प्राइवेसी है, इस तरह से पूछ रही थी मैं।
हुआ? हेलो? Yes, ma'am. जी जी, मैं आपसे पूछ रही थी कि जैसे प्राइवेसी है, वो कोई पासवर्ड है या फिर इस तरह क्या है कि वो एसक्यूएल को कोई और एक्सेस कर ही नहीं सकता, सिर्फ उस इंसान के अलावा जिसने वो डेटाबेस बनाया है? सॉरी मैंने इतना वो इसको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मैंने यही नहीं देखा कि मेरा माइक जो था वो ऑफ था। तो मैं दोबारा फिर से बता देती हूँ कि वो इसी वे में है कि एसक्यूएल जो है ना, वो आपको अब देखें, अब जैसे आप जैसे हैं, अब आपको अगर बिल्कुल कुछ ही नहीं पता है एसक्यूएल का, अगर आप उसको सीखती हैं तो उसका आपके सीखने का पर्पस ही यही होता है कि जो और बंदा है ना वो उसको एक्सेस ना करे। ठीक है? जी जी, समझ रहे बस हैं? मैं यही पूछ रही थी। बिकॉज वो एक लैंग्वेज है, अगर हम सीख रहे हैं, अब उसका वहाँ पे पर्पस तो होगा। अब यहाँ पे अगर आप स्क्रीन देखें, शेयर है, वहाँ पे इतना कुछ बना हुआ है, तो अब ये नॉर्मल बंदे की समझ से तो बाहर है ना कि क्या जी चीजें लिखी हुई है, कैसी हैं, वो क्या है। जी, थैंक यू। ओके। Yes, ma'am. Malaika, we have another student. Yes, Yamnahan, you can ask a question if you have any. यस, आई हैव अ क्वेश्चन। मैंने पूछना था, इसको लर्न करने के लिए आपको किसी कोडिंग वगैरह की ज़रूरत होती है? नहीं नहीं, आपको यहाँ पे कुछ भी कोडिंग की जरूरत नहीं होती। जैसे कि आप ये स्क्रीन अभी तक शेयर है, आप देख सकती हैं, यहाँ पे कोई इतना मुश्किल तो नहीं है। यहाँ पे मैंने कोई कोडिंग वगैरह तो कुछ भी यूज़ नहीं किया है। सिंपली इन चीज़ों से आप डेटाबेस बना सकते हैं, आपको इसमें इतनी वो कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फर्दर अगर आप जॉब्स लेवल पे जाएँ, कंपनीज में इम्प्लाई वो आप डेटाबेस के साथ आप काम नहीं कर सकते। आप इसको किसी ना किसी कोडिंग लैंग्वेज के थ्रू, मीन्स कि इसके साथ मिला के, जैसे C++ हो गया, तो उसके थ्रू आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ऑलराइट, थैंक यू। ओके। और किसी के? I think, ma'am, Malaika, Aslam, we will arrange a question answer session after you completed it. You may please proceed now. ओके। जैसे कि अभी तक शेयर है, यहाँ पे हमारे पास अब इंसर्ट का हो गया। अब अगर यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन शेयर का वो हो रहा होता तो मैं फर्दर सारी जो है वो परफॉर्म करके दिखाती। तो मिस सानिया, मैं अभी क्यूरीज कुछ 3-4 लिखती हूँ, तो मैं आपको डिटेल मीन्स कि वो आपको सेंड करती हूँ, तो आप वो उसको शो कर दीजिएगा। मिस सानिया, आप वही शेयर कर दें, या आई थिंक वो डेटाबेस मुझे नहीं वो मिल रहा, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे वही शेयर कर दें। तो पता है मुझे, क्योंकि ये बिगनर लेवल पे है, तो आप लोगों को इतनी वो समझ नहीं आएगी अगर मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। लेकिन फर्दर अगर कोई इसको पूरा सीखना चाहता है, मीन्स के पूरा कोर्स, तो आई एम हेयर। मैं आपको बिल्कुल फ्री में, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी, मैं आप सबको वो सिखा दूँगी। अगर किसी ने इसको, हम मीन्स के वीकेंड पे वो क्लासेस रख लिया करेंगे, तो मैं आपको फर्दर मीन्स के पूरा ये करवा दूँगी। लाइक आपका कोर्स हो गया,
हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे इंसर्ट की क्यूरी मैंने यूज़ की हुई है, इसी तरह सिंपली आप डिलीट मॉडिफाई की जो है वो क्यूरीज चूज़ करते हैं और इससे जो आपका वो डेटा होता है वो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और अगर आप में है व्यू करना है तो आप वो भी इसको कर सकते हैं। तो इसमें अभी तक जो मेन चीज़ें थी वो यही थी। आगे जो जॉइंस और वो सब क्यों रहते हैं वो बिगनर लेवल के मीन्स की उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, वो ज़्यादा मीन्स के एडवांस हो जाता है तो वो इसमें वो कवर अप हम उसको नहीं कर सकते। तो मिस सानिया आप देख लीजिएगा, अगर कोई सीखना चाहे तो आई एम हियर फॉर एवरीवन। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह इस पर डिटेल में बात करके फिर अपने स्टूडेंट्स के साथ एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ ये बात शेयर कर देंगे कि किस किस दिन हमारी ये क्लासेस होंगी। ठीक है मैम। मैम अगर हम करना चाहते हैं तो आप लोगों से कांटेक्ट किस तरह से करें? आप ग्रुप में ऐड है ना, तो आप मुझे कांटेक्ट कर लें। मेरा ग्रुप में भी नेम सानिया सफ़ीर के नेम से ही है, तो आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा। जब भी कोर्स अनाउंस होगा तो मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगी। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। आई थिंक सो कुछ तो दिमाग में गुस्सा होगा, कुछ तो पता चला होगा कि ये चीज़ें होती क्या हैं या मीन्स कि जो भी थोड़ा हमने पढ़ा था। तो फर्दर आगे हम इंशाल्लाह करेंगे कंटिन्यू, जिसने अगर करना हो तो। मिस सानिया अब हम जा सकते हैं? Yes, of course, Ma'am Malaika Aslam. Thank you so much for joining us and giving such a very good and wonderful introductory session to SQL. Hope our students will have gained some insights about SQL from this session. Thank you everyone for joining us. Also a huge thanks to Ma'am Malaika Aslam for her valuable insights, and she also offered a free of cost course for our students. We are very thankful for her for this good wish. And also another announcement for our students, that please give your attendance once we announce it. Before the announcement, your attendance will not be considered. And this attendance will also be required for. Make sure to give your attendance, everyone, whether they are team members or they are our students or any other participants. Thank you everyone for joining us. Stay tuned with us for some more exciting and wonderful session. Till that, take care of yourselves and Allah Hafiz. आप वेट कीजिएगा। Okay, yes, Sania. ये मैं आपके साथ अपना नंबर शेयर करती हूँ, आप मुझे फिर कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है? Okay, Sania. I'm in the group. You can contact me there. कौन से ग्रुप में? मैं तो इतनी देर से ट्राई कर रही थी कि मुझे आपका नंबर मिल जाए, बट let me check it out, Sania. या फिर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है? Sania, I'm added in the group Women Fortune Take page 8. Are you in that group or not? जी हूँ मैं। ओके, वहाँ से मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर, लेट मी चेक योर कॉन्टैक्ट नंबर फ्रॉम मेरी डिप्पी सेम ही है, ये मेरा लोगो है, आपको पता चल जाएगा आराम से। ठीक है? ओके, Excuse me, Miss Sania? Yeah.